central dogma of life is DNA by replication it increases its content DNA that we have completed right now. हमने वो पढ़ लिया पूरा का पूरा टॉपिक सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन एंड नाउ डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज फॉर्मिंग द आरएनए एंड आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विल फॉर्म द प्रोटीन और आई मीन टू से वी आर गोइंग टू स्टडी होल ऑफ दीज प्रोसेसेस इन सब प्रोसेसेस को अब डिटेल में पढ़ेंगे तो दीज डेज विद द एडवांसमेंट ऑफ सेल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऑल देयर आर सम ब्रॉडर टर्म्स टू रिप्रेजेंट ऑल दीज थिंग्स एंड इफ वी टॉक अबाउट द DNA content, then we can represent this DNA content with the genome or we can replace the DNA content with the word genome. What is meant by genome? That is the total chromosomal content present in the nucleus as well as DNA present in mitochondria as well as in क्लोरोप्लास्ट जितना भी टोटल अमाउंट जेनेटिक मटेरियल का डीएनए का या क्रोमोसोम्स का सेल की न्यूक्लियस के अंदर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द जीनोम जो कि जीनोम के द्वारा रिप्रेजेंट होता है एंड जीनोम बाय अगेन ट्रांसक्रिप्शन इज फॉर्मिंग द ट्रांसक्रिप्टोम ट्रांसक्रिप्टोम इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ आरएनएस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएस दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड स्टडी ऑफ ऑल दीज ट्रांसक्रिप्टोम इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्टोमी तो ये कुछ एंटायर वर्ड्स हैं दैट कैन कम कुछ आ सकते हैं बिकॉज दे आर रिलेटेड टू दीज प्रोसेसेस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से प्रोसेस से ही कनेक्टेड हैं एंड इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन by the transcriptome that comes under the proteome किसके अंदर आता है proteome के and the word proteome is related to the all protein contents present inside the cell that are responsible for the expression जितने भी proteins बनते हैं for some expression of characters and all they are representing the proteome and their study is called the proteome so whatever it is all we can see is the central what is the central biology is central dogma of biology is DNA by transcription and transcription से RNA बनेगा and RNA से then what translation के द्वारा प्रोटीन बनेगा तो अब हम फर्स्ट स्टेप पे स्टार्ट करते हैं what is transcription transcription is the process of copying of genetic information from DNA to RNA or information is copied in the form of RNA. RNA is first transcribed first gene product that is transcribed from the DNA and this transcription as we see later on is carrying the information in the form of genetic code triplet की form में information will be received and this information जैसे कि हमें मालूम है it is taken from the DNA so it will be based on complementary rule and we know all what is complementary rule according to the DNA जैसे कि हमने DNA में देखा था the one strand of DNA was copied into the another and in which both of the strand they were responsible for the formation of the two molecules एक strand से दो strand बनाए थे and that process was homocatalytic but this process is a heterocatalytic process in which DNA is copied into the RNA one strand of DNA will be activating this time and the based on complementarity rule one chain will be formed it will be of RNA RNA की चेन बनेगी एंड रूल क्या होगा कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल होगा और वो रूल हमें मालूम है वन प्यूरिन ऑलवेज कंबाइंस विद pyrimidine जैसे कि एडेनिन ऑलवेज कंबाइन विद thiamine but in this case we should know there is no thiamine in case of RNA then what we will be getting instead of adenine जहाँ पे भी adenine होगा it will combine with uracil और I mean to say DNA के जिस पार्ट में जहाँ पे भी एडेनिन नाइट्रोजन बेस आएगा ना तो वहाँ पे क्या बनेगा RNA का uracil will be formed
This is a basic difference. And second, what we are going to, if we talk about cytosine with guanine, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. Only there will be a big change. Uracil will be there. Uracil होगा, that will be a pyrimidine component instead of thymine. Thymine तो DNA के केस में था ना, अब इसमें उस थायमिन को कौन रिप्लेस कर देगा? यूरेसिल रिप्लेस कर देगा. ये तो अब मैं जब चेन बनाऊंगी तो वी विल बी क्लियरिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, किस तरह से ये कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल विल बी फॉलोड व्हेन वी फॉर्म ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए containing the genetic information in the form of nitrogen bases. So कैसे बनेगा आरएनए का चेन, तो वो उसको हम बाद में देखेंगे. लेकिन हमें अभी इतना माइंड में रखना है कि रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी विल बी फॉलोड, जहाँ पे एडेनिन ऑलवेज पेयर्ड विल बी विद द यूरेसिल ऑफ आरएनए. जब आरएनए बनेगा तो उसमें यूरेसिल आएगा इंस्टेड ऑफ एडेनिन, और जहाँ थायमिन होगा डीएनए में वहाँ उसके बजाय क्या आएगा? एडेनिन विल बी देयर. तो वो हम देखेंगे किस तरह से वो बनेंगे. एंड सेकेंड, व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, only one strand of DNA is copied, will be act as a template. One strand of DNA is copied, or we can say act as a template. Act as a template. स्टूमुलेंट का काम करता है. जो भी काम स्ट्रैंड होगा डीएनए का, ऑलवेज इट इज़ 3-5' स्ट्रैंड, क्योंकि हमें मालूम है चाहे हम रेप्लिकेशन लें चाहे हम ट्रांसक्रिप्शन लें, आरएनए की फॉर्मेशन करें, ऑलवेज देयर इज़ ए डायरेक्शन 5-3' प्राइम एंड. उस डायरेक्शन में ही ट्रांसक्रिप्शन होगी. द सेम, पहले रेप्लिकेशन भी वैसे हुई थी ना, द सेम इज़ हेयर ऑल्सो. वैसे ही आरएनए भी कैसे बनेगा? इन 5-3' डायरेक्शन में. तो दैट मीन्स जो 3-5' वाला स्ट्रैंड होगा ना डीएनए का, विच एक्ट एज ए टेम्पलेट का काम करेगा. दूसरा स्ट्रैंड होगा उसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड. एक्चुअली को कोड नहीं करेगा, तो उनके नेमिंग हम बाद में देखेंगे. फर्स्ट 2 पॉइंट्स व्हाट वी हैव टू कंसीडर, एडेनिन ऑलवेज पेयर्ड विद यूरेसिल. जहाँ पे भी एडेनिन होगा उसके बजाय यूरेसिल आएगा. ठीक है, दैट वी हैव टू कंप्लीट कीप इन माइंड. एंड सेकेंड, ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपीड एंड इट इज ए हीट्रोकैटालिटिक प्रोसेस. डिफरेंट स्ट्रैंड बनेगा ना. हीट्रोकैटालिटिक मीन्स आरएनए बन रहा है किससे? डीएनए से, ना ही डीएनए से डीएनए बन रहा है. तो वो होमोकैटालिटिक था, ये हीट्रोकैटालिटिक प्रोसेस है. ठीक है, तो अब हमें पता लग गया व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे जाएगी आगे, क्योंकि फर्दर उनकी एक्सप्रेशन होनी है ना इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर्स. जो भी लिविंग बीइंग के अंदर हैं, ऑल दे आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन. उनकी बॉडीज में प्रोटीन्स बनते हैं. वो प्रोटीन फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन कहाँ पे कोड होती है? डीएनए में स्टोर होती है. लेकिन कैसे जाएगी, ट्रांसफर कैसे जाएगी आगे, कैसे एक्सप्रेस होगी? बाय द हेल्प ऑफ आरएनए. यानी कि आरएनए सबसे पहले बनेगा और फिर आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन कैसी होगी? ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन आपको समझ में आ गया अब क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन. अब इसके बाद वी शुड नो कि ये भी पता लग गया कि वाई देयर आर ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. ठीक है, इज एक्टिंग एज ए which strand of DNA is acting as a template strand and which strand of DNA is acting as a non-template strand. तो template strand जो जिसको देखकर RNA बनेगा. Now question arises, if we have talked about the transcription, then there question comes a question, why both the strands of DNA, both strands of DNA are not formed in formation of 2 RNA. अगर दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करते हैं तो 2 RNAs बनते हैं ना, बट दिस इज नॉट पॉसिबल. 2 RNAs आर नॉट पॉसिबल. ये ऑटोमेटिक है. क्यों? वो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कुदरत में, नेचर में ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस किसके द्वारा अकम्प्लिश होगा? ओनली वन स्ट्रैंड के दौरान. क्योंकि इसमें 2 कॉम्प्लिकेशंस आती हैं. वन कॉम्प्लिकेशन है कि इफ 2 RNAs सपोज आर फॉर्म्ड, 2 RNAs बन भी गए, ठीक है, देन 2 different proteins can form. 2 different proteins. ठीक है, different sequence of amino acids will be joined and 2 different types of proteins
will be formed and this will complicate the genetic information कि how the protein, एक specific protein will be expressed. जब दो proteins बन रहे हैं तो genetic information कैसे आगे express होगी, किस protein के द्वारा, यानी कि एक complication आ जाएगी genetic information में जो कि possible नहीं है. और हमें मालूम है कि कितना efficient और refined process है ये सब DNA transcription और translation का, जो कि बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई complication नहीं आने देता. If there is complication, there are abnormalities आ जाती हैं, ठीक है ना. तो इसीलिए two strands of DNA they cannot form by the process of transcription to form two different RNAs, क्योंकि दो RNA बनेंगे, two different proteins बनेंगे और expression किस प्रोटीन के द्वारा होगा that one cannot know. एक complication सी arise हो जाएगी ना. और second पॉसिबल रीज़न हो सकता है, अब ये 2 RNAs हैं एंड इफ दे आर फॉर्म्ड दे आर ऑल्सो फॉलोइंग दी कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल. जब दो स्टैंड्स बनेंगे तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है ना. जैसे डीएनए के दोनों स्टैंड कॉम्प्लीमेंट है तो उनसे बनने वाले आरएनए में कॉम्प्लीमेंट होंगे. तो व्हाट विल हैपन, दे विल कॉइल ओवर ईच अदर. चांसेस है ना कि वो आरएनए क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा. दो स्टैंड्स अलग होकर जब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंगली दे हैव टेंडेंसी टू ज्वाइन विद ईच अदर, ठीक है. एक दूसरे के साथ ज्वाइन होने की, कॉइल होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा. और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन से क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, प्रोटीन सिंथेसिस विल बी स्टॉप. क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. Clear? So again the whole of the process will come to stop, then expression will come to stop, then where goes the central dogma of life, कहाँ जाएगा, that one cannot know. So that is why automatically it is fixed that only one strand of DNA is acting as a template to form the RNA. Different types of RNAs are formed by this DNA strand. अब आता है what is the possible part of the DNA, or we can say structural unit of DNA that is responsible for the transcription process. जैसे कि हमें मालूम है DNA is a long strand, इतना बड़ा स्टैंड है, then whole strand is not participating in the transcription process. Only some part of the DNA is transcribed while the other part does not transcribe. और इसका पॉसिबल रीज़न तो मालूम नहीं है, लेकिन एंटायरली ऐसा माना जाता है कि डीएनए के अंदर एक अपने आप ही एक इंफॉर्मेशन होती है कि विच पार्ट ऑफ द डीएनए इज़ टू बी ट्रांसक्राइब्ड एंड विच पार्ट ऑफ द डीएनए इज़ नॉट टू बी ट्रांसक्राइब्ड. तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, ओनली some part of DNA, some part of DNA is transcribed. There are some specific regions, ठीक है, they are responsible, there are some specific regions or genes which are responsible for the expression of formation of the RNA, or they will be giving the expression in the form of RNA by the process of transcription. ठीक है, तो इसके लिए जब हमें मालूम है कि कुछ स्पेसिफिक पार्ट ही ट्रांसक्राइब होता है तो उस पार्ट को भी डिटेल में जानना जरूरी है, एंड दैट पार्ट वी कैन से इज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? इट इज ए यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए. आरएनए की जो फॉर्मेशन करेगा एक स्पेसिफिक सेगमेंट. व्हाट इज दैट सेगमेंट? दैट वी सी नाउ. तो जैसे कि हमें मालूम है देयर आर टू स्टैंड्स. अब ड्रा ऑन दिस साइड, यहाँ बनाती हूँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. तो इफ वी ड्रॉ टू स्टैंड्स ऑफ डीएनए, वन स्टैंड इज इन 5' 3' डायरेक्शन. ठीक है, 5' 3' प्राइम एंड है. तो सेकेंड स्टैंड ऑफ डीएनए इफ वी कंसीडर देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3' 5' डायरेक्शन. ठीक है, ये हमें मालूम ही है एंटी पैरेलल
डायरेक्शंस क्या होती हैं, रूल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंगली वन स्टैंड ऑफ डीएनए इफ वी हैव टेकन 5-3' एंड देन अनदर वी विल बी कंसीडरिंग 3-5' एंड। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है, part of the DNA which is responsible for the expression of RNA comes under the transcription unit। तो transcription unit में जो starting point है ना, which is called the promoter site, उसको हम क्या बोलते हैं, promoter site, और it is that site from where the transcription starts, और ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो वो एंजाइम्स तो हम देखेंगे, व्हाट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम, उनमें क्या स्पेशलिटी होती है, व्हाट काइंड्स ऑफ पॉलीमरेजेस आर देयर इन यूकैरियोट्स एंड इन प्रोकैरियोट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए नीड टू टेल यू विच इज ए प्रोमोटर साइट, दिस इज ए प्रोमोटर साइट। ठीक है, अब इस प्रोमोटर साइट पे को हमने किस तरह से देखना है, इट इज प्रेजेंट ऑन दी 5' एंड अपस्ट्रीम। जैसे इसकी अगर हम रेफरेंस कोड करेंगे ना, स्टार्टिंग करेंगे तो 5' एंड से हमने देखना है। वन स्टैंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट इज एक्टिंग एज ए कोडिंग स्टैंड। ये कौन सा है, कोडिंग स्टैंड, और वी कैन कॉल इट सेंस स्टैंड, और वी कैन कॉल इट नॉन टेम्पलेट स्टैंड, नॉन टेम्पलेट स्टैंड। I mean to say, if it is coding stand but it doesn't code for anything, किसी भी जीन को कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देता, ये कोडिंग स्टैंड, यानी कि आरएनए की फॉर्मेशन में ये क्या हो जाता है, इट इज डिस्प्लेस्ड टू वन साइड, एक साइड पे हो जाता है। एंड एक्चुअली विच इज ए टेम्पलेट स्टैंड, जिसके देखते हुए आरएनए स्टैंड बनेगा, और अकॉर्डिंग टू दी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंगली दैट स्टैंड इज ऑलवेज 3-5' एंड इट इज कॉल्ड दी, व्हाट वी कॉल इट इज कॉल्ड दी नॉन कोडिंग स्टैंड। एक्चुअली यही कोड करता है, नॉन कोडिंग स्टैंड, और वी कैन कॉल इट टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड, और एंटी सेंस स्टैंड, एंटी सेंस स्टैंड। यानी कि जो उल्टा नाम है, वो कोडिंग वाला जो है ना, एक्चुअल में जो भी नया आरएनए बनेगा ना, वो बिल्कुल ऐसा बनेगा कोडिंग जैसा। ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में, वैसा बनेगा, लेकिन जो उसको स्टिमुलेंट कौन कर रहा है उस आरएनए की फॉर्मेशन के लिए, टेम्पलेट स्टैंड का काम कौन कर रहा है, 3-5' वाला। और हमने जितनी भी रेफरेंस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में माननी है, दैट वी हैव टू कंसीडर अकॉर्डिंग टू दी 5-3' एंड। 5-3' एंड कौन सा एंड है, जहाँ पे प्रमोटर स्टार्टिंग में 5' एंड के कोडिंग स्टैंड के 5' के स्टार्टिंग पे जो कुछ यूनिट स्टार्ट्स है ना, दैट साइट इज प्रोमोटर साइट। कुछ सर्टन जीन्स हैं विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, जहाँ पे जुड़ता है सबसे पहले, तो दैट साइट इज प्रोमोटर साइट। और उसके अलावा इसी की 3' एंड पर देयर इज ए साइट विच इज कॉल्ड द टर्मिनेटर एंड। टर्मिनेशन, जहाँ पे आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन खत्म होती है। प्रोसेस तो देखेंगे बाद में, अभी हमने व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, टर्मिनेशन एंड क्या होता है और प्रोमोटर साइट क्या होता है। और इन्हीं दोनों प्रमोटर और टर्मिनेशन के बीच में देयर आर स्ट्रक्चरल जीन्स, एंड स्ट्रक्चरल जीन्स फ्लैंक्स आर फ्लैंक्ड बिटवीन दी प्रमोटर एज वेल एज टर्मिनेटर साइट्स। तो ये साइट जो है ना, जो एक्चुअल में जिसको देखकर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है, ये भी प्रमोटर वाली साइट पे भी, इसको भी ट्रांसक्रिप्शन में नहीं काउंट। एक्चुअल में स्ट्रक्चरल जीन्स दे विल बी गिविंग द रेफरेंस, एंड दिस साइट इज कॉल्ड द, इज द रीजन इज वी कॉल इट स्ट्रक्चरल जीन्स, रीजन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, स्ट्रक्चरल genes which are actually giving the expression of RNA की एक्सप्रेशन देंगे। ठीक है, वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, प्रोमोटर साइट एज वेल एज टर्मिनेटर साइट, और उनके बीच में जो स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे जो आरएनए को एक्सप्रेस करे, आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेशन सेंड करेंगे, तो दे आर कॉल्ड दी स्ट्रक्चरल जीन्स। इन दोनों एंड्स के बीच में होंगे। एंड सेकेंड थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो प्रोमोटर एंड है ना, इट विल डिसाइड विच इज कोडिंग
विच इज़ अ स्टार्टिंग साइट, अगर मान लो ये प्रोमोटर साइट इधर आ जाती है, हम मान लो इस साइट को, ये रेड वाला मैं मान लो इसको प्रोमोटर कह देती हूँ, ध्यान से सुनना, और इसको मैं कह देती हूँ टर्मिनेटर, ठीक है। तो दिस टाइम विच विल बी, तो उससे क्या होगा, कोडिंग स्टैंड की भी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, और हमें मालूम है कि कोडिंग स्टैंड कौन सा होगा, 5-3-, तो स्टार्टिंग में 5-3- ऊपर था जब प्रोमोटर साइड ये वाली थी, लेकिन जब हमने प्रोमोटर साइड वो वाली की तो ये एंड कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी ए टेम्पलेट स्टैंड, तो ये स्टैंड कौन सा बन जाएगा, सेकेंड टाइम टेम्पलेट स्टैंड, एंड नीचे वाला स्टैंड कौन सा बन जाएगा, इट विल बी एक्टिंग एज ए कोडिंग स्टैंड, जिसकी कोई सेंस नहीं होगी। समझ में आ रही है ना। तो आई मीन टू से इट इज द प्रोमोटर साइड विच विल डिसाइड विच इज ए टेम्पलेट स्टैंड और विच इज ए कोडिंग स्टैंड, और which is not coding for anything. Clear? One thing this you have to keep in mind. And while considering all these things, we should also consider some of the additional sequences which are present before the promoter site. कुछ ऐसे sequences होते हैं जो promoter site से भी पहले होते हैं, and they are called the Pribnov box in case of prokaryote. Prokaryote का अगर मैं DNA बनाती हूँ ना, मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से बना के बता देती हूँ रेफरेंस में। प्रिबनोव बॉक्स क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोमोटर साइट बनाई थी स्टार्टिंग में, जहाँ से भी प्रोमोटर साइट है उससे भी पहले देयर आर सम ग्रुप ऑफ सीक्वेंसेस 5-3- एंड पर ग्रुप ऑफ कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि 10 बेसिस अपस्ट्रीम मीन्स प्रोमोटर एंड के अपस्ट्रीम मीन ऊपर की तरफ, 10 बेसिस अपस्ट्रीम्स, देयर आर सम ग्रुप ऑफ बेसिस जिनको हम कहते हैं प्रिबनोव बॉक्स कंटेनिंग TAAT group of 6 nitrogenous bases, and they are called the Pribnov box. अब ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं सबसे पहले जो सिग्मा फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज का जो इनिशिएटिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर, वो हम ही आरएनए पॉलीमरेज का भी स्ट्रक्चर बनाऊंगी ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो सिग्मा फैक्टर पहले रिकॉग्नाइज करता है इस प्रिबनोव बॉक्स को, सो दैट फर्दर आरएनए पॉलीमरेज कैन कम टू दी प्रोमोटर साइट। पहले रिकॉग्निशन कहाँ से होगी सिग्मा फैक्टर की, इस प्रिबनोव बॉक्स से, और ये कहाँ प्रेजेंट है, 10 बेस अपस्ट्रीम टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और कहाँ पे 5- एंड जो है ना, जो कि कोडिंग स्टैंड है, उसका हमने नाइट्रोजन बेसिस के उनके बेसिस को काउंट करना है। 10 बेसिस अपस्ट्रीम देयर इज प्रेजेंट है TAT बॉक्स, ठीक है, टाटा बॉक्स बोलते हैं इसको, एंड दिस टाटा बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग दी 6 नाइट्रोजन बेसिस। ये तो प्रोकैरियोट्स में हो गया प्रिबनोव, इसी तरह का यूकैरियोट्स में होता है हॉगनोव बॉक्स, वो जब यूकैरियोट में आएगा ना तब बताएंगे। तो सेकंड बेस सीक्वेंस इज ऑल्सो देयर, प्रोमोटर एंड से एक और रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है विच इज 35 बेस पेयर सीक्वेंस। इसमें भी कुछ सीक्वेंस ग्रुप ऑफ सीक्वेंसेस होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। मेनली व्हाट यू हैव टू कंसीडर, देयर आर ग्रुप ऑफ एडिशनल बेसिस विच आर प्रेजेंट ऑन दी प्रमोटर साइड लेफ्ट अपस्ट्रीम, जिसको सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है, सो दैट आरएनए पॉलीमरेज कैन ज्वाइन ऑन दी किसमें, प्रोमोटर साइट पे ज्वाइन कर जाए, ठीक है। बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सम एडिशनल सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन एडिशन टू प्रोमोटर, ठीक है। तो वो एडिशनल प्रोमोटर सीक्वेंस कौन से हो सकते हैं, प्रिबनोव बॉक्स भी हो सकता है, एंड देयर आर सम अदर्स दैट कैन बी एक्सप्लेन टू यू इन जीन एक्सप्रेशन, जो कि एक अलग से टॉपिक है ऑपरॉन कॉन्सेप्ट का, उसमें बताया जाएगा। लेकिन अभी आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्लियर होगी जिसमें हमने बताना कि प्रोमोटर साइट क्या है, 5- एंड पे कोडिंग स्टैंड से हमने मेजर करना है, और कोडिंग स्टैंड हमेशा कौन सा होता है, 5-3- जो किसी चीज को किसी को भी कोड नहीं करता, और दूसरा जो टेम्पलेट स्टैंड है जिसको देखते हुए आरएनए बनेगा, विच विल बी एक्टिंग एज ए टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है, वो कौन सा होता है, 3-5। अगर हमने प्रोमोटर को इधर लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, सेंस चेंज हो जाएगी। कौन सी, हमने हमेशा 5-3- वाला कोडिंग लेना है और 3-5- वाला टेम्पलेट लेना है, और उसके अलावा टर्मिनेटर और उनके बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स जो होते हैं, और सिस्ट्रॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ RNA or the initial information of DNA in the form of RNA, that is representing with the help of structural genes,
ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड उसके 10 नाइट्रोजन बेसिस अपस्ट्रीम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टोटा बॉक्स और द प्रिबनॉफ बॉक्स, क्लियर। और उससे भी प्रोमोटर से भी 35, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है वहां से 35 बेस पेयर अपवर्ड, 10 बेस पेयर नहीं, टाटा के 10 नहीं, प्रोमोटर से ही काउंट करना है 35 बेस पेयर अपवर्ड। कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जिनको सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं व्हाट आर आरएनए पॉलीमरेसिस क्या होते हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में।